ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ تمہیں کیا لگا تم میری زندگی سے کھیلو گی؟ میں تمہیں جانے دوں گا؟ رافع عالم سرد لہجے میں کہتے اس کی جانب بڑھا تو وہ روتے ہوئے قدم پیچھے لینے لگی اور سوئمنگ پول میں گری۔ اسے پانی میں ڈوبتا اور تڑپتا دیکھ کر وہ مسکرانے لگا، پھر ایک جھٹکے سے کھینچتے اسے باہر نکالا تو وہ خوف سے اس کے سینے سے لگتی اس کا کالر تھام گئی۔ اس کے لرزتے وجود کو باہوں میں اٹھائے وہ اپنے کمرے میں لایا تو ہوش میں لوٹتی وہ کمرے سے باہر بھاگنے لگی، لیکن رافع نے اس کے دور ہونے پر اسے واپس غصے سے بیڈ پر پھینکا۔ اگر تم دوبارہ مجھ سے دور گئی مسز رافع تو وہ دھمکی آمیز لہجے میں بولا تو وہ چیخ پڑی۔ آپ نے مجھ سے کانٹریکٹ میرج کی تھی جس میں صاف لکھا تھا آپ میرے قریب نہیں۔ وہ اس وقت گہری نیند سو رہا تھا، جبکہ وہ اس کے قریب ہی بیٹھی غصے سے اس کے چہرے کو دیکھ رہی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا وہ زور سے تکیا اس کے چہرے پر رکھ کر اس کی سانسیں بند کر کے اسے اس دنیا سے ہی کوچ کروا دے یا پھر اس کے کھانے میں زہر ملا دے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، بے بسی سے ایک بار پھر وہ رونے لگی۔ رافع عالم جو کہ مسلسل اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کی تپش محسوس کر رہا تھا، سسکیوں کی آواز سن کر اس نے بے ساختہ آنکھیں کھولی تو وہ اس کے قریب ہی بیٹھی تھی۔ کوشش کر کے دیکھ لو، ہو سکتا ہے میں واقعی مر جاؤں۔ مردانہ آواز سن کر اس نے ایک جھٹکے سے اپنا سر اٹھایا اور دائیں جانب دیکھا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اس نے اپنا ایک ہاتھ سر کے نیچے رکھا ہوا تھا۔ مجھے آپ سے شدید نفرت ہے، آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ مجھے آپ کس حد تک ناپسند ہے، وہ روتے ہوئے بولی۔ میری جان مجھے پتا ہے اور مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ آپ نے میرے ساتھ بہت بڑا دھوکہ کیا ہے، میں آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گی، آپ کو اس کا حساب دینا ہوگا۔ لو جی، میں نے کون سا دھوکہ کیا؟ میں نے تو صرف اپنا حق وصول کیا ہے، وہ حق جو مجھے میرے دین اسلام نے دیا ہے۔ اگر تمہیں ایک ہفتے کے بعد بھی ہاتھ نہ لگاتا تو فرشتے مجھ پر لعنت بھیجتے۔ میں کیسے فرشتوں کی لعنت برداشت کر سکتا تھا؟ اور میں کوئی بہت بڑا گنہگار بندہ نہیں ہوں۔ ابھی اس نے بات مکمل نہیں کی تھی کہ وہ اس کی طرف شکایتی نظروں سے دیکھتے کہنے لگی، آپ جتنی نیک ہیں یہ بھی میں اچھے طریقے سے جانتی ہوں۔ ساری غیر قانونی سرگرمیوں میں آپ کا ہی ہاتھ ہوتا ہے۔ 3 بار تو میرے ہوتے ہوئے آپ جیل جا چکے ہیں۔ پولیس ہر وقت آپ کے خلاف ثبوت اکٹھے کرتی رہتی ہے۔ پھر مانتی ہو نا مجھے؟ وہ اس کی بات کرتے ہوئے بولا۔ پولیس ثبوت تلاش کرتی ہے مگر اسے ثبوت نہیں ملتے، تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ میں نے کبھی کوئی جرم کیا ہی نہیں؟ مجھ پر صرف اور صرف الزام لگائے جاتے ہیں۔ تم نے تو سنا ہی ہوگا کہ بدنام وہی ہوتے ہیں جن کا نام ہوتا ہے۔ میں بھی بس اپنے نام کی وجہ سے بدنام ہو گیا ہوں۔ چلو اب جلدی سے اٹھو اور جا کر فریش ہو جاؤ، ہمیں ایک پارٹی میں جانا ہے۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولا تو وہ بے یقینی سے اس کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی۔ میں آپ کو کتنی بار بتاؤں کہ ہم لوگوں کی کانٹریکٹ میرج ہوئی تھی جہاں پر اس طرح کی کوئی ڈیل موجود نہیں تھی۔ تمہیں تو پتا ہے مجھے دوسری بار اپنی بات دہرانا پسند نہیں۔ جلدی سے اٹھو شاباش، اور کالے رنگ کی ساڑی پہننا، تم اس میں بہت خوبصورت لگتی ہو۔ اپنی بات کہہ کر وہ تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ اس نے ایک بہت ہی ضروری فون کال ملانی تھی۔ اس کا سامان دوسرے ملک سے واپس آ رہا تھا۔ اس نے کچھ آدمیوں کو بارڈر پر بھیجنا تھا۔ اس بار کام کافی خطرناک تھا۔ وہ جانتا تھا اگر وہ پکڑا گیا یا تو مر جائے گا یا پھر ساری زندگی جیل میں گزارے گا۔ وہ پاؤں پٹکتی ہوئی واش روم میں چلی گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد جب نکلی تو بیڈ پر پہلے سے ہی وہ سب کچھ موجود تھا جو اس نے آج پہننا تھا۔ یہ یقیناً اس کی نوکرانی سب کچھ سیٹ کر کے گئی تھی۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی اس ساڑھی کے قریب پہنچ گئی جو کہ لاکھوں کی تھی۔ اسے اچھی طرح سے یاد تھا کہ اپنی اس
19 साला जिंदगी में उसने एक बार भी कीमती जोड़ा नहीं पहना था, बल्कि वो हमेशा अपने मामू के बच्चों का उतरन पहनती थी। अगर कभी ईद पर वो नए जोड़े की फरमाइश कर देती तो मामी हमेशा ही उसे जोर से थप्पड़ मारकर उसकी औकात याद दिलाती थी और उसे कहती थी कि तुम्हें हमने अपने घर में रखा हुआ है, तुम्हारे लिए यही काफी होना चाहिए। तुम्हें खाना और रिहाइश दी हुई है, तुम्हें इसी पर शुक्र अदा करना चाहिए। फजूल की फरमाइशों के लिए हमारे पास पैसे नहीं हैं। वो तो शुक्र था कि उसकी मामू जान को उस पर तरस आ गया, जिन्होंने उसे तालीम दिलवाई थी। ये अलग बात थी कि उसने हमेशा ही सरकारी इदारों में पढ़ा था, मगर इस चीज से भी कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो मेहनती थी और पढ़ने वाली बच्ची थी, हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती थी। मैट्रिक में जब उसने अपने जिले से टॉप किया तो पूरा मोहल्ला ही हैरान रह गया। औरतें उसे घर आकर मुबारकबाद दे रही थी। कुछ औरतों ने तो अपने बच्चे भी उसके पास फौरन ही ट्यूशन पढ़ने भेज दिए थे। सब औरतें अपने बच्चों को उसी की मिसालें देती थीं, जिसने घर के सारे काम संभाले हुए थे। उसके बावजूद भी उसने पूरे जिले में टॉप किया था। उसे प्राइवेट कॉलेज में बहुत ही आसानी से स्कॉलरशिप मिल गई। उसने वहीं पर दाखिला ले लिया, जबकि उसके मुकाबले में उसकी मामू की बेटी एक मामूली से कॉलेज में गई थी, क्योंकि उसके मामू का कारोबार यकदम ही डूबना शुरू हो गया। जो अयाशियां थीं वो भी आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो गई। ममानी साहिबा जब देखती कि उनकी बेटी एक मामूली से स्कूल में पढ़ रही है, जबकि उनके शौहर की भांजी एक बहुत बड़े कॉलेज में पढ़ने जाती है, तो उनका दिल जल जाता और इस सब का बदला वो उसे तकलीफ पहुंचा कर लेती थी। बेगम साहिबा, आप अभी तक तैयार नहीं हुई? मैं कब से बाहर खड़ा आपका इंतजार कर रहा हूं। वो कोमल को अपनी आंखों में समोते हुए बोला। उसकी बात सुनकर वो इंतहाई गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखने लगी। मैंने किसी मुजरिम के साथ पार्टी में नहीं जाना। उसकी बात सुनकर वो खिलखिलाकर हंस पड़ा। वो उसकी तरफ गौर से देखते हुए बोला, तुम्हारे पास सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट का वक्त है। अगर तुम तैयार होकर वापस ना आई तो मैं कमरे में आ जाऊंगा, और फिर उसके बाद जो कुछ मैं करूंगा मुझसे किसी किस्म की शिकायत ना करना। वो उसकी बातों के मफहूम को बहुत अच्छे तरीके से समझ चुकी थी, इसीलिए घबराकर कपड़े उठाकर ड्रेसिंग रूम में चली गई। पीछे वो ऊंची आवाज में हंसते हुए कहने लगा, तुम जब मेरी इस तरह से बात मानती हो तो मुझे अपने दिल के बहुत करीब लगती हो। जबकि वो ड्रेसिंग रूम में खड़ी दिल ही दिल में उसे गालियां दे रही थी। उसकी आंखों में आंसू फैले हुए थे। जिन लोगों से उसने हमेशा से नफरत की थी और जिन लोगों से उसे घिन महसूस होती थी, आज वो उन्हीं लोगों में से एक शख्स की बीवी थी। वो शख्स मुसलसल उसके मुल्क को नुकसान पहुंचा रहा था और वो कुछ भी कर नहीं पा रही थी। कभी कभार तो उसका दिल करता था कि वो उसके खिलाफ सबूत इकट्ठे करके पुलिस के हवाले कर दे, मगर वो जानती थी कि इस शहर की सारी पुलिस राफे आलम ने खरीदी हुई है, और अगर उसने ये जुर्रत की तो राफे आलम उसे बहुत बड़ी सजा देगा। थोड़ी ही देर के बाद वो दोनों उस पार्टी पर पहुंच गए। बिलाशुबा वो बहुत हसीन लग रही थी। यूं लग रहा था जैसे आसमान से कोई परी उतर आई हो। राफे आलम को एक लम्हे के लिए अपनी गलती का एहसास हुआ। उसे अपनी बेगम को साड़ी नहीं पहनानी चाहिए थी, क्योंकि इस तरह से वो सब लोगों को अपनी तरफ मुतवज्जो कर रही थी। न सिर्फ मर्द बल्कि औरतें भी उस खूबसूरत हसीना को देख रहे थे। राफे ने बेसाख्ता अपने सूट का कोट उतारा और उसके हवाले करते बोला, इसे पहन लो, जबकि वो मुस्कुराते हुए नफ़ी में सर हिलाने लगी। मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, मैं बहुत कंफर्टेबल हूं। हकीकत तो ये थी कि वो खुद भी इसमें बहुत बेचैन हो रही थी। उसने आज से पहले इस तरह का लिबास नहीं पहना था, मगर राफे को भी तो गुस्सा दिलाना था। वो उसे घूरते हुए कहने लगा, जब मैंने तुम्हें एक बार कहा है तो खामोशी से इसे पकड़ो। मगर वो उसकी घूरियों को नज़रअंदाज करती कोने वाली टेबल पर जाकर कुछ औरतों के साथ खड़ी हो गई और उनसे बातें करने लगी। थोड़ी ही देर गुजरी थी कि उसे अपने नाम की पुकार सुनाई दी।
बेसाख्ता पलट कर देखा तो वहां पर उसकी ममानी की बेटी खड़ी थी, जिसकी तकरीबन 2 साल पहले एक कैप्टन के साथ शादी हुई थी। तुम यहां पर क्या कर रही हो? वो इसे गुस्से से घूरते हुए पूछने लगी। फारिया को वहां पर देखकर कोमल बहुत ज्यादा परेशान हो गई। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, राफे मजबूत कदम उठाता उसके पहलू में आकर खड़ा हुआ और उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहने लगा, अरे मिसेस फारिया, कैसी हैं आप? फारिया उसके एक दोस्त की बीवी थी। वो ये भी जानता था कि वो उसकी बेगम की कजन है। मैं तो ठीक हूं, मगर आप इसे कैसे जानते हैं? वो बेचैनी से उसके हाथों को देख रही थी जो इस वक्त कोमल के कंधे पर मौजूद थे। मुझे पता था कि एक दिन तुम मुंह काला करोगी, वो बाकी लोगों का लिहाज किए बगैर दांत पीसते हुए कहने लगी। इससे पहले कि वो मजीद कुछ कहती, राफे ने हाथ उठाकर उसे खामोश रहने का इशारा कर दिया। मैंने आपको ये इजाजत नहीं दी कि आप भरी महफिल में मेरी बीवी की तजलील करें। अगर आपने ऐसी कोशिश की तो आप जानती हैं कि मैं किस हालत तक जा सकता हूं। और जहां तक हम दोनों के ताल्लुक का सवाल है, तो मैंने इससे निकाह किया है। ये मेरी बीवी है। इसने तो कहा था कि एक जरूरी मीटिंग के लिए शहर से बाहर जा रही है। इसने मेरी मां को धोखा दिया। मैं अभी अम्मी जान को जाकर तुम्हारे करतूतों के बारे में बताती हूं। ये कहकर वो तेजी से वहां से चली गई। कोमल बहुत ज्यादा बेचैन हो गई थी। उसने शिकायती नजरों से इस जालिम इंसान की तरफ देखा जिसने पहले धोखे से उससे निकाह किया था और अब वो उसे अपनी बेगम तस्लीम कर चुका था, बल्कि उसके साथ साथ सारी दुनिया से उसका तारुफ भी करवा रहा था। राफे आलम, खुदा की कसम उठाकर कहती हूं, मुझे जिस दिन भी मौका मिला मैं आपको छोड़कर चली जाऊंगी, क्योंकि मैं कभी भी आप जैसे इंसान को अपने शौहर के रूप में देखना पसंद नहीं कर सकती। वो उसकी आंखों में देखकर 2 टोक अंदाज में बोली तो वो खुलकर मुस्कुराते हुए कहने लगा, और तुम जानती हो कि मैं तुम्हें कभी भी खुद से दूर जाने नहीं दूंगा। तुम उसी वक्त मुझसे दूर जा सकती हो जब मेरी सांसें मेरे वजूद से जुदा होंगी। उससे पहले तो तुम भूल ही जाओ। पार्टी में पूरा दिन फारिया के बारे में सोचती रही थी। उसे अंदाजा था कि वो फौरन मैके चली जाएगी और उसकी ममानी को हकीकत के बारे में बता देगी। जबकि वो रात को घर वापस जा रहे थे तो वो चेहरे से बहुत बेचैन नजर आ रही थी। राफे आलम ने बेसाख्ता उसका हाथ मजबूती से पकड़ा और उसे तसल्ली देते हुए कहा, मुझे बताओ तुम्हें किस चीज का डर है? जब मैंने तुम्हें अपनी बीवी तस्लीम कर लिया है, जब मैं इस बात का एतराफ कर चुका हूं कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं और मैं तुम्हारे साथ सीरियस हूं, मैं कभी भी तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और ना ही कभी तुम्हें अकेला छोड़ूंगा। माजी में जो कुछ भी हुआ तुम उसे भूल क्यों नहीं जाती? तुम मेरे साथ एक नई जिंदगी की शुरुआत क्यों नहीं करती? आप जानते हैं कि मुझे आपके काम अच्छे नहीं लगते। आपका हर काम गलत होता है। आपकी वजह से तो मेरी जिंदगी भी खतरे में है। फिक्र मत करो, मेरे होते हुए और मेरे बाद भी कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। इस बात की गारंटी मैं तुम्हें देता हूं। देखें राफे आलम, मैं आपके साथ घर नहीं बसाना चाहती, क्योंकि मैंने कभी भी अपनी जिंदगी में इस तरह की चीजें नहीं देखी और ना ही मुझे देखने का शौक है। मैं बहुत अमन पसंद औरत हूं और मैं चाहती हूं कि मेरा एक छोटा सा घर हो और मेरा शौहर हलाल कमाता हो। मुझे आपकी इस हराम की कमाई से किसी किस्म की कोई दिलचस्पी नहीं। राफे आलम का चेहरा गुस्से की वजह से लाल हो गया, मगर उसने अपने मुंह से एक लफ्ज भी अदा नहीं किया। उसने गाड़ी की स्पीड यकदम तेज कर दी। उसे रश ड्राइविंग करता देखकर वो बहुत ज्यादा परेशान हो गई और उसका बाजू पकड़कर फिक्रमंदी से कहने लगी, ये आप क्या कर रहे हैं? गाड़ी आहिस्ता चलाएं, वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अपना हाथ हटाओ। वो इतने अजीब अंदाज में बोला कि वो सहम कर पीछे होकर बैठ गई। तकरीबन 20 मिनट का रास्ता उन्होंने 7 मिनट में तय किया था। इस वक्त वो बंगले के सामने मौजूद थे। कल से तुम भी मेरे साथ शूटिंग रेंज चलोगी। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं बिल्कुल ठीक कह रहा हूं।
मैं तुम्हें भी गोली चलाना सिखाऊंगा। इसके अलावा तुम कराटे भी सीखोगी। तुम्हें अपनी हिफाजत करने के लिए मुख्तलिफ तरीके आने चाहिए। ये कहकर वो उसकी सुने बगैर कमरे से चला गया, जबकि वो उसी जगह पर खड़ी की खड़ी रह गई। अजीब पागल इंसान है ये, मुझे भी पागल बना कर रखा हुआ है इस शख्स ने। वो ऊंची ऊंची आवाज में बात कर रही थी। मुझे तुम्हारी आवाज अच्छे तरीके से सुनाई दे रही है। लड़की, कल ही तुम्हें तुम्हारी इस गुस्ताखी की सजा दूंगा। अंदर से वो बोला तो वो गड़बड़ा गई, जबकि गार्ड्स मुस्कुराते हुए उनकी नोक झोंक देख रहे थे। राफे आलम वो आदमी था जिसने आज से पहले कभी किसी से सीधे मुंह बात तक नहीं की थी और ना ही किसी से फजूल बातें करता था। वो अपने काम से काम रखता था। जब भी बोलता था काम के मामले में ही बोलता था। इसके अलावा ज्यादा खामोश रहना पसंद करता था। उसे औरतों की जात से शदीद नफरत थी। औरतों को देखकर उसका दम घुटने लगता था, मगर आज वो एक औरत का ही दीवाना हो गया। वो औरत उसे अपना सब कुछ लगने लगी थी। उसे कभी कभार यूं महसूस होता था कि कोमल उसकी जिंदगी में वो खुशियां लेकर आई है जिसके लिए वो एक लंबे अरसे से तरस रहा था। गार्ड्स जब उसे अपनी बेगम के आगे पीछे घूमते देखते थे तो उनके दिलों को सुकून पहुंचता था, क्योंकि इस आदमी ने उन्हें किसी जमाने में तिगनी का नाच नचाया था और अभी वो खुद एक छोटी सी लड़की की उंगली के इशारों पर नाचता था। अक्सर वो खुद भी ये बात कहता था कि एक बहुत बड़ा डॉन और एक बहुत बड़ा गैंगस्टर जिसे तकरीबन सारा मुल्क घबराता है, और वो अपनी बीवी की एक घोरी से डरता है। कोमल उसे अपने दिल के बहुत करीब लगती थी। वो चाहता था कि कोमल उसके 12-13 बच्चों की मां बने। उसकी बातें सुनकर अक्सर ही वो घबरा जाती और परेशान हो जाती, क्योंकि उसकी फरमाइशें बहुत अजीबो गरीब होती थीं। रात के वक्त जब वो कमरे के अंदर दाखिल हुई तो वो बैठा किताब पढ़ रहा था। इससे पहले कि वो सोफे पर जाकर लेटती, राफे आलम ने उसे घूरी से नवाजा। अब तुम मेरी बीवी बन चुकी हो। मैं तुम पर अपना हक साबित कर चुका हूं। यहां बेड पर मेरे पास आओ। उसने इसे अपने करीब आने का इशारा किया तो वो मुंह बनाते कहने लगी, आपने मेरे साथ जबरदस्ती की थी, ये बात मत भूले। जबरदस्ती नहीं की थी, बल्कि अपना हक वसूल किया था। ये तुम्हें पहले भी समझाया था। इस तरह की बातें करके मुझे गुस्सा ना दिलाया करो। वो दो टोक अंदाज में बोला तो वो ना चाहते हुए भी उसके पहलू में जाकर बैठ गई। आप ये सारे काम छोड़ क्यों नहीं देते? उसने दोबारा से वही सवाल किया। राफे आलम ने एक गहरी सांस ली। क्या तुम्हारे पास इन बातों के अलावा दूसरी कोई बात नहीं? मैं नहीं चाहती कि आप किसी बड़ी मुश्किल में फंसे। जिस दलदल में आप मौजूद हैं उस दलदल से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन आप कोशिश करके तो देखें। अब देखिएगा आपकी जिंदगी इन बंदूकों और इन गोलियों के बगैर किस कदर हसीन हो जाएगी। वो खिलखिलाकर हंसने लगा। छोटी सी लड़की, इनके बगैर तुम लोगों की जिंदगी खूबसूरत हो सकती है, लेकिन मेरी नहीं। मुझे बचपन से ही इन चीजों का शौक था और आज मैं हासिल करने में कामयाब हो गया हूं। आपने बहुत से बेगुनाह लोगों को मारा है। क्या आपको कभी शर्मिंदगी नहीं होती? क्या आपका ज़मीर आपको मलामत नहीं करता? उसने एक और सवाल किया। राफे आलम की आंखें यकदम लाल हो गई। मैंने किसी बेगुनाह को नहीं मारा, वो गुस्से से चिल्लाते हुए बोला। माजी के लम्हात उसकी नजरों के सामने घूमने लगे। मैंने खुद अपनी आंखों से देखा था, आपने एक बेकसूर शख्स के माथे पर गोली मार दी थी। वो आपसे माफिया मांग रहा था, रो रहा था, चीख रहा था। क्या आपको एक लम्हे के लिए भी तरस नहीं आया कि उसका अपना एक खानदान होगा, घर में बीवी बच्चे उसका इंतजार कर रहे होंगे? बस कर जाओ लड़की, खुदा के लिए बस कर जाओ। तुम्हारी ये बातें मेरे सर में दर्द कर देती हैं। अगर तुमने मेरे पास नहीं बैठना तो मत बैठो, मगर फजूल की बकवास ना करो। उसने यकदम कोमल को जोर से जमीन पर धक्का दिया। उसका सर जमीन से जाकर टकराया और खून बहने लगा, मगर राफे आलम फिलहाल उसे नजरें चुरा रहा था।
क्योंकि इस लड़की ने फिर से जाने अनजाने में उसका दिल दुखा दिया था। कोमल बेगम अभी और इसी वक्त मेरी नजरों के सामने से ओझल हो जाएं, वरना अगर मैंने आपको देखा तो मुझे फिर से गुस्सा आ जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मैं कुछ ऐसा कर बैठूं जिस पर हम दोनों को पछतावा हो। उसकी धमकी सुनकर वो रोते हुए कमरे से बाहर निकल गई। इशा की अजानें हो रही थी। उसने वजू किया और नमाज अदा करने लगी। जब वो दुआ मांगने बैठी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। आज वो राफे आलम की हिदायत की दुआएं मांग रही थी। वो अपने रब से तड़प तड़प कर कह रही थी कि उसका शौहर हिदायत के रास्ते पर आ जाए, उसका शौहर तमाम गैर कानूनी काम छोड़ दे। जब से राफे ने उसे अपनी बीवी तस्लीम किया था और उस पर अपना हक साबित किया था, उस दिन के बाद से वो भी ना चाहते हुए राफे की ज़ात में दिलचस्पी लेने लगी थी। हालांकि उस इंसान ने माजी में इसे बहुत सी तकलीफें पहुंचाई थीं, मगर वो अपने दिल का क्या करती जो अब उसी के लिए धड़कने लगा था। बिलाशुबा वो यूं जाहिर करती थी जैसे उसे राफे बहुत जहर लगता है, मगर दिल ही दिल में वो उस पर फिदा थी। वो उसकी पर्सनैलिटी, उसकी नरम दिली और उसकी नरम मिजाजी की वजह से उसे बेतहाशा पसंद करती थी। वो आलम के साथ निकाह के बगैर भी तकरीबन 4 दिन गुजार चुकी थी, मगर मजाल है जो उस शख्स ने एक बार भी इसे हाथ लगाया हो। जब वो उसे किडनैप करके लाया था तब वो एक बार भी उसके करीब नहीं गया था, यहाँ तक कि उन दोनों का निकाह नहीं हो गया, क्योंकि वो जानता था ये लड़की पर्दा करती है, इसीलिए वो उसके पर्दे की तजलील नहीं करना चाहता था। उसने उसके कमरे में 2 औरतों को ठहराया था जो उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखती थी, और जैसे ही 4 दिन गुजरे उसने मौलवी को बुलाया और इस लड़की से निकाह कर लिया। उसे दुआएं मांगते हुए तकरीबन चंद लम्हे गुजरे थे कि वो उसके पहलू में आकर चौकड़ी मार कर बैठ गया। उसने अपना सर कोमल के कंधे पर रख दिया। मुझे माफ़ कर दो, मैंने तुमसे ऊंची आवाज़ में बात की। ये कहकर उसने बेसाख्ता कोमल के माथे पर देखा, जहां पर इस वक्त उस जख्म का निशान मौजूद था। उसने उंगली की पोरों से उसके माथे को छुआ तो एक सिसकी कोमल के मुंह से निकली। क्या ज्यादा दर्द हो रहा है? वो बेचैनी से पूछने लगा। उस दर्द से ज्यादा नहीं है जो आपको इस हालत में देखकर मुझे महसूस होता है। देखें, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूं, आप इन सारे गंदे कामों से बाहर निकल आएं। आप अच्छे काम क्यों नहीं शुरू कर देते? ये कैसी बातें कर रही हो? पागल तो नहीं हो गई? अच्छे काम करूंगा तो सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे और मुझसे कोई नहीं डरेगा। वो अजीब से अंदाज में बोला। सिर्फ अल्लाह ताला को यह हक है कि उससे डरा जाए, उसके अलावा किसी से भी नहीं डरना चाहिए। राफे, मैं कभी कभार आपकी बातें सुनती हूं तो मुझे खौफ महसूस होने लगता है। आपको खुद पर हद से ज्यादा गुरूर है और गुरूर इंसान को डिबो देता है। आप अभी जिन लोगों को अपना सगा समझ रहे हैं और जिन लोगों पर अंधा एतबार कर रहे हैं, ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लोग आपका एतबार तोड़ दें, क्योंकि पहले भी तो बहुत से लोगों ने आपको धोखा दिया था। आपके बहुत से दुश्मन हैं जो हर वक्त आपको नुकसान पहुंचाने के लिए तरकीबें सोचते रहते हैं। मैं नहीं चाहती कि आपको किसी किस्म का नुकसान पहुंचे, इसलिए मेरी ख्वाहिश है कि आप ये काम छोड़ दें और एक आम आदमी की तरह जिंदगी गुजारने लगें। आपका अपना एक बहुत बड़ा कारोबार है, आप उसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं देते? मुझे भी तुम्हारे साथ नमाज पढ़नी है। उसकी बात को नजरअंदाज करते राफे ने एक अनोखी सी फरमाइश की थी। वो जो पहले नमाज पढ़ चुकी थी, मगर उसके लिए फिर से अपनी जाए नमाज पर खड़ी हो गई। इससे पहले उसने राफे को खुद वजू करवाया। राफे एक लंबे अरसे के बाद अपने रब के हुजूर हाजिर होने जा रहा था। उसका दिल बहुत अजीब हो रहा था। वो अपनी कैफियत समझ नहीं पा रहा था। जब वो जाए नमाज पर जाकर खड़ा हुआ तो उसे पता चला कि वो नमाज पढ़ना ही भूल गया है। अचानक ही उसे शर्मिंदगी की वजह से आंखों में आंसू आ गए और छोटे बच्चों की तरह उसने अपना सर झुका दिया, जैसे उससे कोई बहुत बड़ी गलती हो गई हो और अब डांट पड़ने की वजह से वो डर रहा हो।
کیا ہوا آپ کو؟ نماز کیوں چھوڑ دی؟ کومل نے اسے کہا تو وہ معصومیت سے نفی میں سر ہلاتے کہنے لگا، مجھے نماز پڑھنی نہیں آتی۔ کومل نے اسے ڈانٹنا نہیں تھا بلکہ خاموشی سے وہ اسے اونچی اونچی آواز میں پڑھانے لگی تھی، جبکہ وہ اس کے پیچھے دوہرا رہا تھا۔ نماز مکمل کرنے کے بعد جب وہ دعا مانگنے کے لیے بیٹھا تو اس کا ذہن مکمل طور پر خالی تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ اپنے رب سے کیا مانگے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سب کچھ دے رکھا تھا۔ اسے طاقت چاہیے تھی، اس کے پاس طاقت تھی، پیسہ تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے پہلو میں بیٹھی اس قیمتی لڑکی کو دیکھا جو اس کے لیے اس کا سب کچھ بن گئی تھی، اور وہ اپنے رب کے حضور دعا کرنے لگا، یا اللہ اس لڑکی کو ہمیشہ میرا بنا کر رکھنا، یا اللہ اس لڑکی کو کبھی بھی مجھ سے دور نہ کرنا، اور نہ ہی میری وجہ سے کبھی اس کی آنکھ میں کسی قسم کے آنسو آئیں۔ رافع عالم نے اتنے عرصے بعد سب سے پہلی دعا اپنی بیگم صاحبہ کے لیے کی تھی۔ جیسے ہی وہ نماز پڑھ کر فارغ ہوا اس کا موبائل بجنے لگا۔ اس نے دیکھا تو اس کے سب سے خاص دوست کی کال آ رہی تھی۔ دراصل اس کے اڈے پر کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ ایک لمحے کی دیری کیے بغیر وہ اٹھا اور بھاگا ہوا اپنے کمرے میں گیا۔ اس کی رفتار کو دیکھ کر کومل اچھے طریقے سے اندازہ لگا چکی تھی کہ اسے پھر سے کوئی کام آ گیا ہے۔ جب اس نے ہاتھ میں اسے پسٹل اٹھائے دیکھا تو ایک لمحے کے لیے وہ سہم گئی۔ بھاگتی ہوئی اس کے پاس گئی اور اس کا بازو پکڑتے کہنے لگی، آپ پلیز آج مت جائیں۔ کومل میرے راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے مت روکو۔ تم جانتی ہو کہ میرا کام یہی ہے اور میں اس معاملے میں کسی کی نہیں سننے والا۔ اس نے بہت ہی آہستگی سے کومل کا ہاتھ اپنے بازو سے ہٹایا۔ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اگر آپ کی غیر موجودگی میں کسی نے مجھ پر حملہ کر دیا یا کوئی مجھے اغوا کرنے کے لیے آ گیا تو میں کیا کروں گی؟ اسی لیے اب میں تمہیں سیلف ڈیفینس سکھاؤں گا۔ کل سے تمہاری ٹریننگ شروع ہو جائے گی۔ فی الحال میرے راستے سے ہٹو۔ اسے پیچھے ہٹا کر وہ تیزی سے گھر سے باہر نکل گیا، جبکہ وہ زمین پر بیٹھ گئی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ جانتی تھی کہ اس انسان کو ایک دم سے وہ ٹھیک نہیں کر سکتی۔ اس انسان کو سدھارنے کے لیے اسے ایک بہت لمبا وقت چاہیے تھا۔ ایک دم سے وہ اس انسان کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں کر سکتی۔ پوری رات وہ جائے نماز پر بیٹھی رہی اور اس کی حفاظت کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ صبح جب وہ آیا تو فجر کی نماز ادا کر رہی تھی۔ اس کی آنکھیں نیند نہ پوری ہونے کی وجہ سے لال ہو رہی تھیں۔ ایک لمحے کے لیے وہ حیران ہو گیا اور گھٹنوں کے بل اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا، کیا تم ساری رات جاگتی رہی ہو؟ اس کی بات سن کر وہ شکایتی نظروں سے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، جب شوہر اتنا خطرناک کام کرنے جائے گا تو کون سی بیوی پرسکون ہو کر سو سکتی ہے؟ رافع عالم کو بے ساختہ اس پر بے تحاشا پیار آیا۔ اس نے اس کا سر اپنے سینے سے ٹکایا اور اس کے سر پر بوسہ دیتے ہوئے بولا، میں اپنے رب کا جتنا بھی شکر ادا کروں کم ہے جس نے مجھے تم جیسی عورت سے نوازا۔ میں نہ تو اتنا نیک تھا اور نہ ہی اتنا قابل تھا کہ مجھے تم جیسی بیوی ملتی۔ میں تمہاری جتنی بھی قدر کروں کم ہے۔ اگر آپ میری قدر کرتے ہیں تو میری بات کیوں نہیں مان لیتے؟ چلو فی الحال تم سو جاؤ، جب سو کر اٹھو گے تب ہم اس بارے میں بات کریں گے۔ وہ اسے چھوٹے بچوں کی طرح اپنے بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پر لٹا چکا تھا۔ اس کے اوپر کمبل درست کرتا ہوا وہ اسے ہدایت کرنے لگا اور اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ گہری نیند سو چکی تھی۔ اس نے پیار سے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور خود لڑکھڑاتا ہوا ڈریسنگ روم میں چلا گیا۔ شاید وہ حد سے زیادہ نیند میں تھی اور تھکی ہوئی تھی، اسی وجہ سے وہ نوٹ نہیں کر پائی کہ وہ ٹھیک طرح سے نہیں چل پا رہا۔ اس نے اپنی پینٹ ٹانگ کی جگہ سے اوپر کی جہاں پر ایک گہرا زخم تھا۔ ایک گولی اسے چھو کر گزری تھی مگر اسے اچھا خاصا نقصان پہنچ گیا تھا۔ وہ شکر ادا کر رہا تھا کہ اس کی بیوی نے نوٹ نہیں کیا، ورنہ وہ پھر سے رونا شروع کر دیتی اور وہ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ سکتا تھا۔ بہت ہی احتیاط سے اس نے زخم کو صاف کیا اور پھر اس کے بعد مرہم پٹی کی۔ تھوڑی دیر کے بعد
थक कर वो कुर्सी पर टेक लगा चुका था। उसके साथ ये सब कुछ पहली बार नहीं हो रहा था, बल्कि इससे पहले भी छोटी छोटी झड़पों में उसे चोटें पहुंचती रहती थी, मगर वो जानता था कि ये सब कोमल के लिए नया होगा। वो राफे आलम, जिसने सोचा था कि वो मर जाएगा लेकिन कभी किसी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करेगा। पहली वजह औरतों पर एतमाद नहीं था, दूसरी वजह ये थी कि वो जानता था उसकी जिंदगी बहुत मुश्किल है, और अगर वो जिंदगी के किसी मौके पर शादी कर भी लेता है तो उसकी बीवी की जान को खतरा हो सकता है। मगर जब उसने कोमल को देखा तो खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाया। ना चाहते हुए भी वो इस लड़की की ज़ात में दिलचस्पी लेने लगा। उस दिन वो शहर की सबसे बड़ी कंपनी में सिर्फ और सिर्फ उसके ओनर को डराने के लिए गया था, लेकिन वहां पर वो खुद इस लड़की से खाइफ हो गया। कोमल ने अपनी डिग्री मुकम्मल की तो उसे एक मल्टीनेशनल कंपनी में नौकरी मिल गई। वो बहुत ज़हीन और काबिल लड़की थी। चूंकि वो एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी थी, इसी वजह से कोमल के लिबास पर अक्सर ही तनकीद की जाती। चूंकि वो नकाब करती थी, इसी वजह से लोग उसका मजाक बनाते थे, मगर उसे इन सब से कोई गर्ज नहीं थी। उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अपना काम करना और महीने के बाद तनख्वाह लेना था। दरअसल उसके मामू इन दिनों बीमार रहने लगे थे। उन्हें कैंसर हो गया था और उसे अपने मामू का इलाज करवाना था। उसके लिए वो पैसे इकट्ठे कर रही थी। उसे अपने बॉस से लोन चाहिए था, क्योंकि उसकी ममानी ने रोते हुए उसके सामने हाथ जोड़े थे और उस पर अपने एहसान गिनाते हुए कहा था कि जब तुम्हें हमारी ज़रूरत थी तब हमने तुम्हारी तमाम ज़रूरियात पूरी की। अब हमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। मुझे किसी भी तरह से रकम ला कर दो ताकि तुम्हारे मामू का इलाज मुमकिन हो सके। उन्होंने अपनी शादीशुदा बेटी फारिया से बात की तो उसने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। 1 महीना पहले ही हम हनीमून मना कर आए हैं, सारे पैसे वहीं खर्च हो गए। उनकी अपनी बेटी बहुत बेहिस निकली थी। कोमल के माँ बाप का उसके बचपन में ही इंतकाल हो गया था और वालिदैन की वफात के बाद उसके मामू और मुमानी ने उसकी परवरिश की थी। बिलाशुबा उन्होंने उस पर बहुत जुल्म किए थे, मगर उसके बावजूद भी वो उन दोनों से बहुत मोहब्बत करती थी। जब वो अपने बॉस के पास गई तो वो अजीब से अंदाज में उसके पूरे वजूद को देखने लगा और कहने लगा, मैं तुम्हारी मदद करने में किसी किस्म की कोई मुश्किल महसूस नहीं करूंगा, मगर उसके लिए तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। सबसे पहले तो अपना ये नकाब उतारो और मुझे अपना हसीन तरीन चेहरा दिखाओ। इतने अरसे से तुम्हारी हसीन आंखें देख रहा हूं, मेरा दिल कर रहा है अब तुम्हारा दीदार कर लिया जाए। उसके बाद तुम्हें लोन देने के बारे में सोचूंगा। बॉस की बातें सुनकर उसे लगा उसके कदमों के नीचे से जमीन निकल गई हो। वो बेयकीनी से उस शख्स की तरफ देखने लगी जिसकी इतनी लंबी दाढ़ी थी। मालूम होता था उससे बड़ा दीनदार इस दुनिया में कोई है ही नहीं, और जिसके हाथों में हमेशा तस्बीह मौजूद होती थी। आज वो उससे इस तरह की फरमाइश कर रहा था। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि आप इस कदर घटिया इंसान हो सकते हैं। इससे पहले कि वो कुछ और कहती, बॉस ने उसे बाजू से पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा। इससे पहले कि वो उसे अपने कंट्रोल में लेता, कमरे का दरवाज़ा एक ज़ोरदार आवाज़ से खुला और राफे आलम कमरे के अंदर दाखिल हुआ। हाथापाई में उसका नकाब भी उतर गया था। अब वो अपना सादा सा चेहरा लिए बेयकीनी से कभी राफे आलम को देखती तो कभी उस जालिम बॉस को देखती जिसने उसे बेपर्दा कर दिया था। राफे आलम की आंखें तो पलक झपकना ही भूल गई थीं। उसने आज से पहले इस कदर हसीन औरत कभी नहीं देखी थी। उसने जब अपने चेहरे पर उसकी नज़रों की तपिश को महसूस किया तो जल्दी से अपना चेहरा ढांपने लगी। इससे पहले कि वो वहां से निकलती, राफे उसके सामने जाकर खड़ा हो गया। उसने अपनी जेब से पिस्टल निकाला। जब तक मैं नहीं कहूंगा तुम दोनों में से कोई भी यहां से नहीं निकलेगा। पहले मुझे बताओ कि यहां पर क्या हो रहा था। उस लड़की और शकूर साहब की हालत देखकर उसे अंदाजा तो हो गया था कि इस इंसान ने दोबारा से
इस लड़की को हरासा करने की कोशिश की है। उसने डर के मारे रोते हुए अपने ऊपर बीती हुई दास्तान सुना दी, जिसको सुनकर राफे आलम का खून गुस्से से खौलने लगा। उसने वो पिस्टल शकूर साहब के सर पर रखी। मोहतरम, पहले मेरा लोन तो वापस करें, जो पैसे आपने मुझसे ले रखे थे। अगर तुमने 5 मिनट के अंदर अंदर वो सारे पैसे यहां मेज पर लाकर ना रखे तो तुम्हें इस दुनिया से ही रुखसत कर दूंगा। उसी वक्त कोमल के फोन पर घर से कॉल आ गई। उसकी मोमानी रो रही थी और उसे कह रही थी कि आज किसी तरह से पैसे इकट्ठे कर लो, आज आखिरी दिन है, ऑपरेशन लाजमी करवाना है, वरना तुम्हारे मामू इस दुनिया से चल बसेंगे। वो बहुत बेबस महसूस कर रही थी। वॉल्यूम ऊंचा था, इसी वजह से राफे आलम ने भी वो आवाज सुन ली थी। सुनो लड़की, तुम मेरे पास आओ। उसने उंगली के इशारे से उसे अपने पास बुलाया तो वो छोटे छोटे कदम उठाती उसके करीब जाकर खड़ी हो गई। तुम्हें पैसे चाहिए? उसने दो टोक अंदाज में पूछा तो वो मासूमियत से हाँ में सर हिलाने लगी। मुझे बताओ, पैसे हासिल करने के लिए तुम क्या कर सकती हो? वो जानबूझकर उसे तंग कर रहा था। वो गुस्से से उसके चेहरे की तरफ देखते हुए बोली, मैं कोई गंदा या हराम काम नहीं करूंगी, मगर तुम्हारे मामू की जिंदगी तो खतरे में है। तुम्हें तो उनकी जिंदगी बचाने के लिए कुछ भी करना चाहिए। आखिर को उन्होंने तुम्हारी परवरिश की है। यकीनन वो उसकी मुमानी की सारी बातें सुन चुका था, इसीलिए उसकी मुमानी के एहसान जता रहा था। ठीक है छोटी लड़की, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हूं, मगर इसके लिए तुम्हें मुझसे निकाह करना होगा। फिक्र मत करो, ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज होगी। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी जान को यह बताना है कि मैं शादी कर चुका हूं। उसने अपनी दादी जान का बहाना बनाया था। हकीकत तो ये थी कि उसका इस पूरी दुनिया में कोई नहीं था। उसने भी अपने पास एक फर्जी सी कहानी बना ली थी कि उसकी दादी जान पिछले कई सालों से उसे तंग कर रही हैं कि वो शादी कर ले, क्योंकि उन्हें पोते पोतियां चाहिए, मगर वो किसी भी औरत को अपनी जिंदगी में शामिल नहीं करना चाहता था। सिर्फ और सिर्फ अपनी दादी जान को तसल्ली देने के लिए वो उसे कॉन्ट्रैक्ट मैरिज करेगा। उसकी बातें सुनकर कोमल गहरी सोच में डूब गई। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की बात कर रहा था तो इसमें कोई बड़ा मसला नहीं था। वो जानती थी कि कॉन्ट्रैक्ट को हर हाल में फॉलो करना पड़ता है, मगर शायद वो राफे आलम को नहीं जानती थी, जो अपने उसूलों के अलावा किसी उसूल को मानता ही नहीं था। ठीक है, मैं आपसे निकाह करने के लिए तैयार हूं, लेकिन ये निकाह कितने अरसे तक होगा? जब तक मैं चाहूंगा तब तक चलेगा। इसके अलावा जितनी भी तफसीलात हैं तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाएंगी। पैसे अपने घर वालों के हवाले करने के बाद वो उसके साथ उसकी हवेली चली गई थी। 4 दिनों तक उसने उसे यूं ही अपनी हवेली में रखा, मगर इस दौरान वो ना तो उसके करीब गया और ना ही किसी किस्म की कोई बदतमीजी की। वो उसे लेकर वहां से अपनी हवेली चला गया। उसने अपने दोस्तों को भी बुला लिया था। कॉन्ट्रैक्ट उसके सामने ले जाकर रखा गया, जहां पर लिखा था कि उन दोनों के दरमियान किसी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं होगा। ये देखकर उसने सुकून भरी एक सांस खारिज की। निकाह के फौरन बाद राफे ने उसके हवाले एक मोटी रकम की थी। ये पैसे उन पैसों से कई गुना ज्यादा थे जो उसे इलाज के लिए चाहिए थे। उसने हैरत से राफे आलम की तरफ देखा तो वो मुस्कुराते हुए बोला, जब कोई मुझसे 1 मांगता है तो मैं उसे 3 देता हूं। वो उसकी बात समझ चुकी थी। उसकी हवेली देखकर इसे अंदाजा हो चुका था कि वो एक बहुत अमीर इंसान है और उसके लिए पैसे ज्यादा अहमियत नहीं रखते। ड्राइवर ने उसे उसके मामू के घर के बाहर छोड़ा था। उसी रात उसने अपने मामू जान का ऑपरेशन करवाया, जबकि बाकी पैसे उसने अपनी मुमानी के हवाले कर दिए थे। उसने अब अपनी कंपनी में जाना छोड़ दिया था और किसी और जगह पर नौकरी तलाश कर रही थी, जबकि एक रात उसे राफे की तरफ से कॉल मौसूल हुई, अभी और इसी वक्त मेरे पास पहुंचो।
وہ غصے سے چیختے ہوئے کہنے لگا، ہمارے درمیان اس طرح کا کوئی کانٹریکٹ نہیں ہوا تھا، اور کال کاٹ دی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ اس کے کمرے میں موجود تھا۔ اسے لگا اس کے قدموں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہے۔ پیاری لڑکی، تمہیں پتا ہے مجھے انکار سننے کی عادت نہیں ہے۔ وہ اس کی طرف بڑھتا ہوا بولا تو وہ خوف کے مارے پیچھے ہٹی۔ آپ یہاں پر کیسے آئے؟ دروازے سے آیا ہوں۔ گھر کا دروازہ کسی نے کھول رکھا تھا۔ ویسے تم لوگ بھی ذرا احتیاط نہیں کرتے، وہ منہ بناتے ہوئے بولا۔ کومل آج واقعی دروازہ لاک کرنا بھول گئی تھی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد وہ اسے لے کر اپنی حویلی چلا گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اسے کمرے میں لے کر جاتا، وہ وہاں سے فوراً بھاگ جانا چاہتی تھی کہ کمرے کے باہر تھوڑے ہی فاصلے پر سوئمنگ پول تھا۔ بے ساختہ اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سوئمنگ پول میں جا گری۔ وہ جو اس کے پیچھے جانے والا تھا، اسے پانی میں ہاتھ پاؤں مارتا دیکھ کر کھل کھلا کر ہنسنے لگا اور پھر گھٹنوں کے بل بیٹھ کر اس کا تماشا دیکھنے لگا۔ پانی تمہارے قد سے کم ہے بے وقوف لڑکی۔ جب وہ بولا تو وہ جلدی سے اپنی جگہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ واقعی پانی کم تھا۔ وہ یوں ہی خوف کی وجہ سے ہاتھ پاؤں مار رہی تھی۔ بہت تیزی سے باہر نکلی، مگر اس کے ساتھ ہی رافع نے اسے دوبارہ سے پانی میں دھکا دے دیا۔ اب کی بار اسے بے بسی اور شرمندگی کا احساس ہو رہا تھا۔ آپ میرے ساتھ یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا تو وہ مسکراتے ہوئے کہنے لگا، کیونکہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ وہ خود نہیں جانتا تھا کہ وہ اس لڑکی سے پیار کا اظہار کر رہا ہے۔ اسے اس بات کا بالکل اندازہ نہیں تھا کہ چند ہی دنوں میں وہ لڑکی اسے اپنے دل کے اتنے قریب لگنے لگے گی۔ اس نے ایک جھٹکے سے اسے سوئمنگ پول سے باہر نکالا اور بعد میں وہ اٹھا کر اندر کی طرف بڑھنے لگا۔ جب وہ اس کا کالر پکڑ کر مضبوطی سے کہنے لگی، پلیز مجھے جانے دے۔ ارے جان، پہلے آپ پر اپنا حق ثابت کروں گا، پھر آپ کو یہاں سے جانے کی اجازت ہوگی۔ یہ بھی صرف اسی لیے جانے کی اجازت دوں گا کیونکہ آپ اپنی ممانی کو بتا کر نہیں آئی۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ آپ نے تو کہا تھا کہ یہ کانٹریکٹ۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، رافع عالم نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ رکھا اور اسے خاموش رہنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا، وہ پہلے کی بات تھی، اب میں نے اپنا مائنڈ تبدیل کر لیا ہے۔ تم مجھے اپنے دل کے بہت قریب لگنے لگی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس پر جھک گیا، مگر وہ تیزی سے پیچھے کی طرف ہٹی اور روتے ہوئے بولی، میں اس سب کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں ہوں، مجھے تھوڑا سا وقت چاہیے۔ پہلے وہ حیرانگی سے اس کی طرف دیکھنے لگا اور پھر آنسو صاف کرتے بولا، اس میں رونے والی کون سی بات ہے؟ تم جتنا چاہے اتنا وقت لے سکتی ہو، لیکن یاد رکھنا میں تمہیں زیادہ وقت نہیں دوں گا، اور کل ہی تم میری حویلی میں آ رہی ہو۔ چاہے تو اپنی ممانی جان کو ہم دونوں کے نکاح کے بارے میں بتا دو یا پھر کوئی اور بہانہ بنا دو۔ اگر میری مانتی ہو تو انہیں شادی کا بتا دو، کیونکہ اب تو میں تمہیں کبھی خود سے جدا نہیں کروں گا۔ اس وقت وہ اسے کوئی اور ہی رافع عالم نظر آ رہا تھا۔ اگلے ہی دن وہ اپنا مختصر سا سامان اٹھا کر وہاں پر آ گئی۔ تقریباً 1 ہفتے تک وہ اس کے ناز نخرے اٹھاتا رہا، لیکن 1 ہفتے بعد اس نے اس پر اپنا حق ثابت کر دیا۔ کومل کو اس کی کسی بات سے کوئی مسئلہ نہیں تھا، وہ تو خود اس انسان کو پسند کرتی تھی، کیونکہ رافع عالم نے اسے ہمیشہ وہ محبت دی تھی جس کی اسے کمی رہی تھی۔ اسے صرف اور صرف ایک کام برا لگتا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ چاہتی تھی رافع عالم میں ایک اچھا انسان بن جائے۔ شام کے وقت جب وہ سو کر اٹھی تو اسے لے کر اپنے واحد بنے جم میں چلا گیا۔ تقریباً 1 گھنٹے کے اندر کومل کی حالت اچھی خاصی بوڑھی ہو چکی تھی۔ وہ اسے مسلسل باتیں سنا رہی تھی جبکہ وہ مسکرا رہا تھا۔ بس اسی طرح اگر تم کراٹے سیکھتی رہی تو ایک دن تم مجھ سے بھی اچھا لڑنا سیکھ جاؤ گی۔ کومل نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑے مگر بولی کچھ نہیں، کیونکہ اس کی سانس بہت بری طرح پھولی ہوئی تھی۔ دن تیزی سے گزرتے جا رہے تھے، مگر رافع عالم کی سرگرمیوں میں ابھی تک کوئی تبدیلی نہیں ہوئی تھی۔ دوسری طرف کومل امید سے ہو گئی۔
बहुत जल्द वो एक बच्चे की मां बनने वाली थी। उसकी प्रेगनेंसी को तकरीबन 6 महीने गुजर चुके थे। एक रात वो फिर बताए बगैर बंगले से बाहर निकल गया और उसी दिन उसके कुछ दुश्मन उसकी गैर मौजूदगी में घर के अंदर दाखिल हो गए। गार्ड तेजी से भागता कोमल के पास गया। वो उसे हवेली से निकालना चाहता था, मगर उससे पहले ही वो बदमाश लोग लाउंज में पहुंच चुके थे। कोमल उन्हें देखकर गार्ड के पीछे जाकर छुप गई। वो लोग तादाद में ज्यादा थे। गार्ड को मारने के बाद अब वो कोमल की तरफ बढ़ रहे थे। अचानक ही शेर खान की नजर उसके पेट पर पड़ी। वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, आज एक तीर से 2 शिकार करूंगा। उसी वक्त राफे आलम वहां आ गया। उसने अपनी बीवी को जल्दी से कमरे में जाने का कहा और खुद उन लोगों का मुकाबला करने लगा। हर तरफ गोलियों का शोर था। आज उसे सही मायनों में इस बात का अंदाजा हो रहा था कि वो एक गैंगस्टर के घर मौजूद है। जब शोर थम गया तो वो अपनी जगह से उठी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसे शिद्दत से कुछ गलत होने का एहसास हो रहा था। राफे आलम इस वक्त थका हारा सोफे पर बैठा था। उसने सोचा भी नहीं था कि कभी उसकी गैर मौजूदगी में दुश्मन उसके इस तरह से घर पर हमला कर देंगे। अगर उसे वक्त पर पता ना चलता तो यकीनन वो अपनी बीवी और बच्चे से हाथ धो बैठता। उसकी नज़र सीढ़ियों की तरफ उठी तो वो छोटे छोटे कदम उठाती नीचे आ रही थी। वो अपनी जगह पर उठ खड़ा हुआ और उसके पास गया और एक झटके से उसे अपने सीने से लगा लिया। वो फूट फूट कर रोने लगी और उसके सीने पर जोर जोर से हाथ मारते कहने लगी, अगर आज आप ना आते तो आप हम दोनों को खो देते। उसने अपने पेट पर हाथ रखते हुए खौफ और गुस्से के मिले जुले तासुरात से कहा। आज राफे आलम को अंदाजा हो रहा था कि खानदान उसके लिए कितनी अहमियत का हामिल है। आज एक लम्हे के लिए उसके दिल में ये ख्याल आया था कि अगर उसने कोमल को खो दिया, उसके बाद वो कुछ सोच ही ना सका। उसे अपनी जिंदगी तारीक लगने लगी थी। बिलाशुबा वो एक बहुत बड़ा गैंगस्टर था, लेकिन अब अपनी बीवी की खुशी के लिए उसे ये सब कुछ छोड़ना था। उसने अपना सारा बिजनेस मुल्क से बाहर सेटल कर दिया और कोमल और अपनी मासूम 2 जुड़वा बेटियों को लेकर मुल्क से बाहर सेटल हो गया और उसकी जिंदगी वाकई में पुरसकून हो गई थी। अब ना ही वहां पर गोलियों का शोर होता था और ना ही उसे ये टेंशन होती थी कि उसके दुश्मन उस तक पहुंच जाएंगे। वो खामोशी से पाकिस्तान से रोपोश हो गया था। कोई नहीं जानता था कि वो इस वक्त कहां पर मौजूद है और वो चाहता भी नहीं था कि किसी को उसकी मौजूदगी के बारे में पता चले। शाम के वक्त जब भी वो घर आता तो उसकी बीवी मुस्कुराते हुए उसका इस्तकबाल करती, जबकि उसकी बच्चियां उसे बाबा बाबा कहते लिपट जाती। वो अपने रब का जितना शुक्र अदा करता कम था, जिसने उसे हिदायत का रास्ता दिया था और जिससे उसे इतनी पाक और अच्छी बीवी अता की थी कि जिसके लिए वो सब कुछ छोड़ने पर तैयार हो गया था। अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर दें ताकि हमारी आने वाली हर मज़ेदार कहानी आपको वक्त पर मिलती रहे।